Hello to each and every one of you, and welcome once again to Steven Sir Makes It Easy, where as usual I do my best to make sure that the concepts, the various chapters, the various transactions that are connected to the subject of bookkeeping and accountancy and finance, to the extent possible, I explain it to you in such a manner that it is easily digestible. Okay, before I get started with the agenda for the day, which will be one of the questions for CBSE level 12th standard, the specific chapter of not-for-profit organization. Yes, like I said, I'll be doing that in some time, but before I get started, a few quick reminders, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि पब्लिक मेमोरी, ओके, आई डोंट मीन स्टूडेंट्स की मेमोरी, पब्लिक मेमोरी, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन उनको यूट्यूब से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से तो कुछ ज़्यादा ही फ्री का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. ओके, यू आर टेकिंग इन सच अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो याद रखना है वो याद रख नहीं पाते हो. Therefore, very quick reminders, you can get connected to us. How do you do that? You can get connected to us through the Facebook page, also the Instagram handle, as well as the Twitter handle. Most importantly, like I always say, is the Telegram channel given above. All these links are provided in the description. Do get connected to us through the Telegram channel. It is used for various purposes. If your question is, what purposes is this used for? So very quickly, let me remind you, Telegram channel पे normally on a daily basis an update is put and reminder is put that the next day which lectures will be premiered. Okay, so if you are a student who is of that particular standard and interested in that particular chapter, then most definitely you are aware in advance that tomorrow at this time this lecture is going to get premiered. Secondly, any announcements, okay, about changes in lecture schedule, okay, वो भी telegram channel के द्वारा किया जाता है, as well as at the end of every chapter the PDF of the question and answer of the entire chapter summarized and put together will be shared on the telegram channel. You can always and you should always download it. दूसरी बात, besides the telegram channel, do remember that if you do intend to purchase the textbook from which we provide the explanation, well, explanation हमारे तरफ से होता है, question textbook की तरफ से होते हैं. So उसका जो purchase link है, that has been provided in the description below. And if you have, very importantly, missed out the previous lecture, it is my request that there is a I button given above. Click it, go there, watch it, and then you can come back. That's all the announcements that I had to do. Let me get started with today's task, which is to continue the teaching of accounting for not-for-profit organization. Now, it has been for multiple lectures. In fact, I would say we are almost as far as practical questions, long questions are concerned, approaching the end of this particular chapter. Question पीछे है, question का look, दिखावट, okay, थोड़ा अलग है. It's different today. What is different today? Very, very important. Well, the above part is receipts and payment account. वो normal है. But ये जो मेरे पीछे है ना, this is a table. There are two dates, 1st April, 31st March. So the adjustments are not given in point 1, point 2, point 3, point 4 in a paragraph style. No, it is given in a table style. तो इशारों में आपको बहुत से adjustments दिए गए हैं. अभी कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी, एंड आई ट्रूली बिलीव, ये मेरा विश्वास है, आप सब लोग बड़े समझदार हो. तो आई रिपीट, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा जो इशारे यहाँ पे दिए गए हैं वो उसका भांडा फाश हम करें, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमको क्या चीज़ कहाँ पर लिखना है एंड विच आर दी एडजस्टमेंट्स. राइट नाउ इज मी रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. फाइन. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ जन कल्याण क्लब. सो अगर आप सोल्यूशन बनाने वाले हो, मेरे साथ में सॉल्व करने वाले हो, आप भी लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ जन कल्याण क्लब. एंड अगर मैं भूल गया, आप इन लेक्चर्स के बारे में जानकारी आपके दोस्तों तक, कॉलेज के दोस्तों तक
ज़रूर पहुंचाइए, ओके, सो दैट जस्ट लाइक यू आर बेनिफिटिंग, ओके, जैसे ही आपको फ़ायदा होता है इन लेक्चर्स का, उनको भी फ़ायदा हो सके। हाँ, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमेशा जो ऊपर पूछा गया है, इट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये कब का है? 31 मार्च 2017। सो द करंट ईयर हैज़ टू बी 16-17, ओके। Therefore, the opening balance sheet has to be 31st March 16 last year. Now, वो जो मैंने कहा कि current year is 16-17. So, अगर आप पीछे नोटिस करो, current year 16-17, last year 15-16 and next year 17-18. It is always a good idea. ये एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी आदत होगी. If you can write the last year, the current year and the next year, आपने पहले लिख के रखा है, as well as not just लिख के रखा है, in your mind you know that I am solving for the year 16 and 17, okay, मतलब जो इस तरफ आता है. So let me change this situation and take you back to the question. तो we will be starting with the opening balance sheet, क्योंकि opening balance sheet is not given in this particular question. Then we will transfer to the closing balance sheet. Then we will prepare receipts and payment में से income and expenditure, and last में जो adjustments है, जो आज थोड़े निराले तरीके में, in a very different and unique manner adjustments दिए हैं, वो हम लोग try करेंगे. Okay. In the meanwhile that you are listening to me discussing the question, एक और suggestion है मेरा. What is that suggestion? You require one formula for subscription, very important formula. Formula नहीं आनी है, but ये जो ऊपर का फॉर्मूला है, on very rare occasions, बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि RTNL all is used, very rarely, okay. Today it will happen. वो एक आज का लेक्चर होगा जहां पर RTNL हम पूरी तरीके से यूज करेंगे. ऑन दी ऑपोजिट साइड रेंट के लिए एक PTNL का फॉर्मूला दिया है हमने, वो भी लिख लेना. एंड जस्ट बिलो दैट स्टेशनरी के लिए एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज इन दिस सम यू विल नोटिस कि देयर इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. तो जब भी स्टॉक आएगा यू आर डीलिंग विथ आइदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान आपका वहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, बट आप एटलीस्ट ये लिख के रख लो, ताकि जस्ट लाइक आई एम रेडी for the solution, so are you. Right now, question and reading. Cash in hand as on 1st April 16. This is opening balance sheet का cash. Subscription, इसमें there is no hint given of the opening balance sheet, कुछ नहीं बोला. Donation, normal donation. सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में से माइनस होगा. हमने ये ऑन मल्टीपल ओकेशंस, अनगिनत बार हमने सेल ऑफ एसेट किया है, एंड एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू माइनस करना. तो आज भी वही बोलूंगा मैं. एंट्रेंस फीस, ये इनकम होता है. लाइफ मेंबरशिप फीस इज एडिड टू द कैपिटल फंड. रीजन, बिकॉज लाइफ मेंबरशिप फीस इज रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर ओनली वंस. एक ही बार वो देता है, उसके पूरे लाइफ में वो एक बार देता है, ओके. देयरफॉर इट इज कंपल्सरीली, इट इज अ कैपिटल आइटम, इट इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम, इट इज नॉट अ रोजाना आइटम, ओके. हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज आई वुड से वन ऑफ द VIP आइटम्स, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? देखो, जब तक ओके आप बीज नहीं बोओगे, सीड, सबको पता है ना, ओके. व्हेन यू सो अ सीड यू गेट अ ट्री, एंड देन मे बी उसमें से फल फूल आएंगे. पहले आपको एक बीज बोना है. अ सीड हैज टू बी सोन फॉर यू टू ग्रो समथिंग. सो होल्ड ऑन, अभी मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इंटरेस्ट एक फल है, इट इज अ फ्रूट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप यू ऑन अ इंग्लिश ट्रैक एंड अ हिंदी ट्रैक ऑल्सो. इंटरेस्ट कब तक आपको नहीं मिलेगा? जब तक आप इन्वेस्टमेंट ना करो. तो आई रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदी में मजाक मजाक में कहावत कहते हैं ना क्या, कि पहले अंडा आया कि मुर्गी. कंफ्यूजन है.
तो उसी तरह यहाँ पे अंडे मुर्गी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यू हैव टू नो पहले इन्वेस्टमेंट होगा तो ही इंटरेस्ट की कमाई होगी। अगर ये पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर फुल ईयर 5000, आपने 5% के हिसाब से 5000 का इंटरेस्ट कमाया फॉर द फुल ईयर, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। यू मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इन द ओपनिंग बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कितना, आई डोंट नो, ढूंढना पड़ेगा। ये जो मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, जस्ट कीप इन माइंड कि यू हैव इन्वेस्टमेंट व्हेन यू रीड द फुल सम, ऊपर नीचे दाएं बाएं, व्हेन यू रीड द फुल सम यू विल बी लाइक सर इन्वेस्टमेंट तो कहाँ पे आया नहीं, वो छुपा रुस्तम है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। हाउ टू डू दैट, थोड़े टाइम दे दो, आई विल टेल यू। सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दिस इज स्टेशनरी परचेज जो ऊपर है ना, रेंट, रिपेयर, बुक्स परचेज, बिल्डिंग परचेज, दिस इज एसेट्स, कैश ऑन द लास्ट डे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लिस्ट दैट यू सी इट इज एज ऑन 1st April। ये पूरा लिस्ट 1 2 3 4 5 6 विल कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि देखिए कि ये पहले दिन का लिस्ट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स व्हाट, अभी चैप्टर इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। व्हेन यू पे इन एडवांस इट इज प्रीपेड एसेट, बट व्हेन यू रिसीव इन एडवांस इट इज प्री रिसीव्ड, उल्टा लाइबिलिटी। कुछ मेंबर्स ने फीस पहले ही दे दिए आने वाले साल का। सो दिस 1000, ये जो मेरे पीछे है, ये आपको एडवांस में मिला था लास्ट ईयर में। फॉर विच ईयर? करंट ईयर। ना इसके बारे में कंफ्यूजन मत करना। इसका डेट देखो 31 मार्च 17, ये हम लोग बाद में रीड करेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर, हमारी जो चिंता है ओके वो किस बारे में है, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा। हाँ, तो दिस इज अ लाइबिलिटी रिसीव्ड इन एडवांस, बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देयर आर मेनी मेंबर्स ना, बहुत लोग हैं मेंबर्स। कुछ लोग टाइम के पहले देते हैं, कुछ लोग टाइम जाने के बाद भी नहीं देते, तो उसको रिसीवेबल कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये एसेट है ओपनिंग बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बुक्स, फर्नीचर, एसेट, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी। ऑल्सो रिमेंबर, पुराना हिसाब क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ये रिसीव्ड इन एडवांस, कब तक एडवांस में होगा? अगर वो करंट ईयर के लिए दिया है देन इट हैज टू बी एडजस्टेड। ये रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू बी रिसीव्ड, एंड दिस आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज पेएबल, इट हैज टू बी पेड। पुराना हिसाब क्लियर हो जाना चाहिए, पुरानी कहानी अंत करो, खत्म करो। ओके, दैट इज इट। यू डोंट थिंक सर अब इसके बाद में देर इज द पॉइंट नंबर 1 2 3, नो, दिस इज इट। दिस 1 to 6 आर ऑल योर एडजस्टमेंट्स। देर आर सम वेरी यूनिक एंड डिफरेंट लुकिंग एडजस्टमेंट्स। सॉल्व तो वही पुराने स्टाइल में करेंगे, बट द वे इट इज गिवन टू यू, जिस तरह ये परोसा गया है वो थोड़ा हटके है। ओके, नाउ there is a list behind me, well पहले behind me था, of the same items, अभी ये मेरे behind हो गया, but it is on 31st March 17, तो वो हम लोग when we come to the end of the year चिंता करेंगे। right now step 1 क्या है, opening balance sheet बनाओ। so guys and girls, let me take you to the opening balance sheet, and in that एक ऐसा पोजीशन आएगा, पहले तो मैं कैश लिख देता हूं, विच इज 6800, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैश के नीचे ही दिया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड आई टोल्ड यू इंटरेस्ट तभी होगा अगर इन्वेस्टमेंट होगा, एंड आई हैव रेड द फुल क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट का पत्ता ठिकाना नहीं, यू हैव नॉट सीन। ओके, ऐसा नहीं अरे सर मैंने चश्मा डाला नहीं इसके लिए दिखा नहीं, नो,
मैंने चश्मा डाला है तो भी मेरे को दिखा नहीं। हाँ, तो सर इन्वेस्टमेंट ढूंढे कैसे? ओके, वी हैव टू सर्च इट। कैसे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप लोग प्लीज देख लो। सो वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट। देखो, दो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, मैंने कहा ना बीज बोओगे तो ही फल मिलेगा, तो वो बीज इन्वेस्टमेंट है, फल इंटरेस्ट है। द क्वेश्चन सेड द इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट जो है ना ऊपर, वो एट द रेट ऑफ 5% है। 5% ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट तो हमको पता नहीं है। हाँ, तो एक काम करो, इफ यू डोंट नो समथिंग, आपको इक्वेशंस में पढ़ाया गया है, व्हेन यू डोंट नो समथिंग लेट इट बी एक्स। ओके, ऐसा मैथ्स में सुना तो होगा, डेफिनेटली सो, नॉट जो सुना होगा, आई नो आपने बहुत बार किया है। हियर जो मेरा तरीका है, लेट द अननोन इन्वेस्टमेंट बी 100। somebody will say, but sir 100 किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने अजम्पशन किया। तो अगर कोई बोलेगा सर मेरे को 100 पसंद ही नहीं है, मैं तो 99 पे आउट हो जाता हूँ, पहुँचता ही नहीं हूँ 100 पे, तो मैं बोलूँगा जोक्स अपार्ट, ओके, मैं बोलूँगा आपको जो नंबर पसंद है आप लिख लो। इफ़ यू वांट टू राइट 10 वो भी चल जाएगा, इफ़ यू वांट टू राइट 5 वो भी चल जाएगा, यू कैन डू, बट 100 इज बिकॉज उसका कैलकुलेशन सिंपल होता है। लाइक इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। हाउ मच 5%? 5 रुपया। अगर आपने सोचा दैट इन्वेस्टमेंट इज 100, तो 5% उसका इंटरेस्ट 5%, बट दिस इज ख्याली पुलाव। व्हाट डज दैट मीन? यू आर थिंकिंग अगर 100 तो 5, बट इन एक्चुअल रियलिटी ये जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 5000। नाउ इफ यू सर 5000 किसने कहा? वेल, रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया था, यू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000, तो दिस इज 5000। सो अगर ये रियल में 5000 है तो रियल में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? बिकॉज आई रिपीट, देयर हैज टू बी इन्वेस्टमेंट, तब जाके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट 5000 है तो वो इन्वेस्टमेंट कितना था? करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड I repeat, what do you cross multiply? Well, 100 into 5000 divide by 5. The answer that you get is 1 lakh rupees. I repeat myself. क्या है? They gave a hint. आपने interest on investment कमाया, but if you don't have investment, तो interest कहाँ से आया? Okay? मतलब अगर किसी के हाथ में I see a can of पेट्रोल, तो मैं क्या सोचूंगा? ऐसा नहीं अरे तू किसी को जलाने जा रहा है, नहीं, पेट्रोल हाथ में है तो गाड़ी होनी चाहिए। मे भी गाड़ी कहाँ पे खराब हो चुकी है, पेट्रोल खत्म हो चुका है, मतलब पेट्रोल है हाथ में तो गाड़ी होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। हाँ, तो उसी तरह ओके, अगर इंटरेस्ट कमाया तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड वी जस्ट फाउंड इट आउट। सो लेट्स टेक दिस 1 लाख, एक कदम पीछे जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। इट्स इन अ वेरी यूनिक स्टाइल, थोड़ा एकदम हटके स्टाइल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले आपको ढूंढने के लिए कहा। वेल एक्चुअली कहा नहीं है, आपको समझना था। देन यू हैड लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये था लास्ट ईयर में करंट ईयर का एडवांस, सो इट इज फॉर 16-17, रिसीव्ड इन 15-16, but for 16-17, okay, so it is this year's subscription received last year. Keep my wordings in mind, this year's subscription received last year. Then you had subscription outstanding, मतलब receivable, so I did write both of them, so you know कि दोनों का मतलब एक है। outstanding वहाँ पे means payable, 2000. Then it said stock of stationery, but it's a good idea to write opening stock of stationery 1200. Books, पुराने books थे, पुराना furniture था 13500, and furniture. Once you write all of these assets and liabilities, all the points, okay, especially the 6 points जो 1 अप्रैल को दिए थे, you have covered up. Total कर लेते ताकि capital fund हमारा आ सके,
Okay, the sixth point which went off my mind was outstanding rent. Okay, very quickly मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग से चला गया था. तो पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड फर्नीचर के बाद यू हैव आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज दिस वन 1000. दिस आउटस्टैंडिंग मीन्स पेएबल क्योंकि वो खर्चे के साथ है ना, इसलिए. अब मैं टोटल कर सकता हूँ 1,39,500 एंड आई विल गेट अ कैपिटल फंड 1,37,500. Okay, and then automatically you see all these items above and I've left some space. Okay, so books 3 lines, furniture के लिए भी कुछ 3 lines लगेंगे. Okay, क्योंकि कुछ सेल है, कहाँ पे परचेस है, कहाँ पे डिप्रीसिएशन है. Okay, so please transfer all of this, ऊपर कर लेना थोड़ा थोड़ा. और इसके पहले पेज पे एक ही आइटम, opening stock of stationery 1,200. Okay, this is step 2. जो opening balance sheet में आया, everything is shifted to the closing balance sheet. Only one item, the opening stock of stationery, क्योंकि वहाँ पे closing आएगा. Okay, अभी now from receipts and payment we will do our best to prepare income and expenditure. So let me start. Subscription 60,200 in the formula of subscription, ऊपर 60,200. Donation 3,000. Nothing special about donation, कुछ खास नहीं. Normal income 3,000. सेल ऑफ फर्नीचर, नथिंग स्पेशल बिकॉज वी हैव डन इट. इतनी बार हमने सॉल्व किया है कि ब्रैकेट में दिया बुक वैल्यू 6,000 बट सोल्ड फॉर हाउ मच 4,000. तो अनफॉर्चुनेटली 2,000 का नुकसान हो गया. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज फर्नीचर में से इसको माइनस करो, बट बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच इज द सेम, विच आप सोच सकते हो कि इज द सेम. सो द फर्नीचर रिमेनिंग इज 10,000 बट like I said, okay, unfortunately नुकसान हुआ तो वो loss on sale of furniture वो डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे आपको लिखना है. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट में नुकसान उठाना पड़ा 2,000. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टिल टुडे ऑलवेज हैंडल्ड द सेल ऑफ एनी एसेट. Next, entrance fees 800. Very simple, लिख दिया entrance fees 800. Next, life membership fees, ये एक ही बार आता है 7,000 from members don't pay again and again. ये capital fund में add हो जाता है, add it to capital fund 7,000. Then comes interest on investment. इस पे कोई hidden adjustment नहीं है. That's important. Yes, with the help of that हमने investment ढूंढा, but क्या ये investment interest 5,000 का क्या ये incomplete है? बिल्कुल नहीं. आपका investment 1 लाख का है, उसका अगर आप 5% ढूंढोगे you will get 5,000. तो interest पूरा completely is received. Okay, there is no I received 2,000, I am still to get 3,000. No, full 5,000 is received. So there is no hidden adjustment. तो कुछ ऐसा आपको लाइन नहीं लीव करना. You can directly write interest on investment 5,000. Okay, and that takes care of that. Next, salaries 24,000. Very simply, there is no adjustment. और ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,000. अगेन नथिंग स्पेशल, हर सीन में ड्रामा नहीं होता, हर टाइम एडजस्टमेंट नहीं होता. स्टेशनरी, दिस इज परचेस ऑफ स्टेशनरी. तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे मत लिखना, देयर इज अ फॉर्मूला. उसी फॉर्मूला में आप लिखो प्लस परचेस ऑफ स्टेशनरी एंड देन टोटल.
दैट मीन्स टू से 3500. 3500 आपके पास स्टेशनरी, पेन, रूलर, रबर, बुक्स, पेजेस, ओके, कार्बन, ये सब अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, ओके, बट उतना यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है, ओके, तो बाकी का बचा हुआ जो गायब है वो यूज़ हो गया, वो बाय द टाइम वी कम टू द आंसर वो पता चल जाएगा. नेक्स्ट, रेंट, वी हैव a formula right above 16,000 and then उसका जो adjustment है when we come to the point, last point of the problem. So just to tell you कि if somebody would ask you, आपसे कोई पूछेगा आपने कितना लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, तो आप बोलोगे 16,000. देखो ना पैसे 16,000. कोई आपसे पूछेगा वो आपने 16,000 टाइम पे दिया, वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है. आप बोलोगे अरे नहीं नहीं नहीं, उसमें ना 1,000 पुराना भाड़ा है, ओके, मे बी 2,000 अगले साल का भाड़ा है, सो दैट कैन हैपन, बट पेमेंट आपने 16,000 किया, उसमें यू कैन हैव सम कॉम्प्लिकेशन, ओके, ऑफ लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, वो हम लोग लेटर ऑन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, रिपेयर 700, वेरी सिंपल आइटम. नेक्स्ट, बुक्स परचेस्ड 6,000, देर इज पुराना बुक्स, तो उसी में ऐड कर लो न्यू बुक्स, सो योर टोटल बुक्स 19,500 टोटल, ओके, पूरा. बिल्डिंग परचेस्ड, तो यू डिडंट कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, मेनी पीपल डू दैट, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते, बट कुछ लोग खरीद लेते हैं बना बनाया बिल्डिंग, रेडीमेड, एसेट 30, जस्ट ऊपर सिंपल, बिल्डिंग 30,000. एंड आई थिंक लास्ट वन, कैश इन हैंड, दिस इज क्लोजिंग कैश, तो वेरी ऊपर क्लोजिंग 1,800, ओके. बाय दिस मेरा receipt and payment has got converted into income and expense, but right now अभी very very important is जहाँ पे आपको आपका थोड़ा IQ अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा. Why am I saying that? Let's read. What is there behind me? Point number 1, subscription received in advance, meaning some students, some members ने आपको एडवांस में 1,000 दिया था. कब? लास्ट ईयर में. कब के लिए? फॉर व्हेन? करंट ईयर के लिए. सो दिस 1,000 इज दिस ईयर्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर. सो व्हेन यू लुक एट द फॉर्मूला RTNL, where does this 1,000 fit? This year's received last year, okay. ये साल की कमाई है, करंट ईयर की कमाई है, करंट ईयर में लिखना पड़ेगा, या प्लस किया, दैट मीन्स वी आर राइटिंग इट. बट सेकेंड इफेक्ट, एल, ये एल मतलब लाइबिलिटी साइड पे जाना पड़ेगा एवरीवन. एल मीनिंग वी हैव टू गो टू द लाइबिलिटी साइड एंड वी कैन सी दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. व्हाट वर्डिंग्स डू आई डू? Is this still in advance? No, because the year for which it was in advance, 16-17, वो खत्म हो गया, it's ended. That period duration has ended, so it's no longer in advance. That means what do I do with this 1,000? You adjust it, meaning you write the word adjust it, finish it, खत्म करो, ये advance में नहीं है, okay. Anything that you pay in advance, okay. If you are traveling via a metro train, if you have taken a 1 month pass, okay, you have paid and you have taken a card, okay, for 1 month, तो after 1 month वो expire हो जाएगा, expire खत्म हो जाएगा, you cannot use it ahead. हाँ, तो उसी तरह ये advance खत्म हो गया, okay. This was advance received in the last year for the current year. But if you look at the question, ये continue करता है, क्या करता है, देखो मेरे पीछे, ये क्या है, same item 3,200, but on which date? 31st March 17. So as on current year का end, again you have subscription received in advance, but will it be advance for the current year? Never. How can you have advance for the current year? Advance तो कल का होता है ना, मतलब
नेक्स्ट ईयर का, ओके, अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग, नेक्स्ट ईयर का एडवांस आपको करंट ईयर में मिला है, दिस वन 3200. तो वे विल इट फिट इन माय फॉर्मूला? नेक्स्ट ईयर का एन, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मेरे को मिला है. एल इज द सेकेंड इफेक्ट. एल मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा. तो ये जो चक्कर है रिसीव्ड इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, ये चलता ही जाता है, खत्म नहीं होता. ओके, 3200. सो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट नंबर 1, द लिटिल बिट मोर ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट वेरी, चुटकी बजा के बच्चों को समझ में नहीं आता है. बट इफ यू मिस्ड आउट समथिंग दैट आई सेड, यू कैन ऑलवेज जस्ट रिवाइंड एंड प्ले इट वंस again. Okay, as like I'm saying, on this channel we are doing our best to do as many sums as possible, from the simplest one, from the illustrations one to the practice problems, this one being a little bit more complicated. So I really hope, and I am reminding you consistently, that please share the information about the channel as well as the information about the lectures, okay, with your friends, because there is no other way that I can go about it, you being a very very direct source. okay, कहते हैं ना डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ ये लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूसरों को दीजिए. पॉइंट 1 हमारा हो गया. पॉइंट 2 इज स्टिल अबाउट सब्सक्रिप्शन. ओके, क्या है पॉइंट 2 में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वाला 2000. लास्ट ईयर का 2000 रिसीवेबल है. क्वेश्चन, डिड यू रिसीव इट? वेल, अगर आप, इफ यू लुक एट द आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन, हाउ मच डिड यू रिसीव? 60,200. तो 2000 का तो वसूली रिसीव्ड आपने पक्का किया होगा, बिकॉज यू हैव कलेक्टेड 60,200. वी अज्यूम लास्ट ईयर का यू हैव रिसीव्ड 2000, बिकॉज collecting 2000 is not a big problem compared to collecting 60,000. If you're capable, okay, it's like this, if you're capable of carrying 20 kgs weight, I will not doubt you in carrying 2 kgs. मैं बोलेगा 20 kg उठाता है तो 2 kg उठाने में क्या तकलीफ है, वो तो आराम से उठा लेगा. तो उसी तरह यहाँ पे जन कल्याण क्लब ने अगर अपने मेंबर्स से 60,200 की वसूली की है, they have collected it, received it, so 2000 तो पक्का किया होगा. सेकेंड इफेक्ट ए, एसेट साइड. तो चलिए, यू विल नोटिस ऑन द एसेट साइड कि यस सर लास्ट ईयर का 2000 रिसीवेबल है. हाँ, तो अभी रिसीव्ड हो गया ना, तो उसको अभी क्लियर करो. पुराना हिसाब क्लियर हो गया, अभी नया हिसाब स्टार्ट होगा, नई कहानी स्टार्ट होगी. सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, यू हैव 3700 करंट ईयर का रिसीवेबल. सो देयर आर 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है, 1st April, 31st March. The wordings are the same, but dates अलग अलग है. Okay, so 3700. I will write receivable for current year. So if you can please notice that above. And उसके बाद में subscription में R and T plus होगा, N and L minus होगा, and then the answer in the outer column 59,700. Please do that. अदरवाइज पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा, बिकॉज इनर कॉलम में कोई देखता नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम में देखता नहीं है, वो मार्क्स आपको आउटर कॉलम के हिसाब से दे देगा. सो सेकेंड इफेक्ट ऑफ रिसीवेबल एसेट साइड, इट गोज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3700. पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आप जब भी आपको PDF मिल जाएगा ना इसका, उसमें मार्क करना. ओके, डिजिटली मार्क करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टीवन सर ने इसको किस तरह समझाया है आपको. आप हमेशा ओके रिवाइंड प्ले करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थकने वाला नहीं हूँ. ओके, सो आप लोग कर सकते हो. पॉइंट नंबर 3, वेरी सिंपल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ये ओपनिंग था तो ये क्लोजिंग है 800. तो डोंट वरी, आई डोंट हैव टू गिव यू अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. So closing stock of stationery, the outer column after subtraction is 2700, and the second effect of closing stock, second effect asset side पे बढ़िया है.
So just above closing stock of stationery. So point 1, 2, 3 done. 4 बुक्स, कितने बुक्स थे स्टार्ट में 13,500, कितने बुक्स है एंड में 16,500. आई रिपीट माई सेल्फ, स्टार्ट में 13,500, एंड में 16,500. कीप दैट 16,500 इन योर मेमोरी. रीजन, लुक एट दिस 16,500. बट व्हेन यू लुक एट बुक्स, आप बोलोगे, क्योंकि आपको दिखाई देगा सर ये तो 19,500 है. क्वेश्चन सेज that on 31st March 17, 19,500 is not the value of books. It is 16,500. So look, outer column. क्यों लिखा outer column में? Why did I write it? Because the question said that the value of the books is not 19,500, not what you think, 16,500. Then you think, but how will 19,500 become 16,500? My dear, there has to be a subtraction of 3,000. Why is there a subtraction of 3,000, my dear? मेरे प्यारे दोस्तों, depreciation देने का थोड़ा निराला, unique style, different style. So the difference between 19,500 and 16,500, which is 3,000, which is reduction, is considered to be depreciation. So it's not a complicated बात नहीं है. Okay, just that I just want, थोड़ा ड्रामा इसलिए करता हूँ ताकि आपका ध्यान रहे उस पर. ओके, कि सर वो 3,000 डेप्रीसिएशन किधर से आया? वेल, उन्होंने 16,500 दिया, मेरे पास वैल्यू था 19,500, तो क्यों कम हो गया? डेप्रीसिएशन की वजह से बुक्स का वैल्यू कम हो गया. सेकेंड इफेक्ट, आफ्टर ऑल ऑफ दिस डोंट फॉरगेट कि सेकेंड इफेक्ट भी तो करना है. सो डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, वेरी वेरी सेम स्टाइल में furniture is what is going to appear in front of you. Have a look. देखिए question. This is opening furniture. This is closing furniture. 8,000 is closing furniture. Now, if you look, आप लोग बोलेंगे कि sir, the furniture is 10,000. Why is the question saying that it is 8,000? Just what we did previously. If 10 becomes 8,000, there has to be a deduction of 2,000, and the reason for that, depreciation. Okay, क्यों एक बार बता दिया ना, तो दोबारा मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है. That is how we got depreciation for books. That is how we got depreciation for furniture. So almost all our points are done. These are normal adjustments. ये कोई different नहीं है. बट जो द वे इट इज प्रेजेंटेड टू यू, ओके, वो थोड़ा डिफरेंट एंड यूनिक स्टाइल है. एंड लास्टली, आउटस्टैंडिंग रेंट. इन द लास्ट ईयर आपने ये 1,000 नहीं दिया था, बट इफ यू रिमेंबर, आई रिपीट, इफ यू रिमेंबर, यू विल से बट सर मैंने तो देखो 16,000 का रेंट दिया. मैं बोलेगा यस डेफिनेटली. अगर आप 16,000 दे दिए तो लास्ट ईयर का तो 1,000 पेंडिंग आपने पक्का दिया होगा. तो वी अज्यूम, वी थिंक कि 16,000 के अंदर 1,000 इज ऑफ लास्ट ईयर. देयरफॉर आई राइट इट देयर, प्लीज नोटिस. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दैट, लास्ट ईयर का इसके लिए माइनस किया. सेकेंड इफेक्ट, एल लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड. यू विल नोटिस आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर वो पेड हो गया, पुराना हिसाब क्लियर. ओके, क्लियर. बट वेन यू लुक एट द क्वेश्चन, हाँ सर चलो, मतलब चलो मुसीबत क्लियर, बट देन वो मुसीबत ऐसी है कि वो हर साल आती है, हर साल आती है. तो आपको ये भी नजर आएगा, हाउ मच इज दैट 2,000. ये कब का आउटस्टैंडिंग? अरे ये करंट ईयर का है, डेट देखो ना, 31st मार्च का है ये वाला 2,000. ओके, लाइक आई एम सेइंग कि क्वेश्चन में ड्यूरिंग द लेक्चर मेरा एक घूमना फिरना काफ़ी होता है, बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन for the in the view of the question. So that's the reason I'm reminding again and again, please make sure that you are joining the Telegram channel, because बिना मेरे शक्ल के, ओके, आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों PDF फॉर्मेट में वहाँ पे मिल जाएगा. तो वहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. हाँ, तो ये 2,000 जो है, दिस 2,000 ये करंट ईयर का पेएबल है, रेंट. तो पेएबल फॉर करंट ईयर, राइट अबव यू नोटिस. एंड if you solve the whole formula, okay, you outer column में आपको आएगा 17,000. Second effect of payable,
2000 on the liability side. So you notice it there, 2000, and then we have covered up all our points. ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, we didn't have any point that we did not cover up. So totaling, we can definitely start and we can try to find out surplus है, deficit है, income is 68,500, and fortunately surplus is there in this problem, 11,100. okay, that's surplus. क्या करेंगे? वेल ये मेंबर्स की कमाई है, मेंबर्स के पिटारे में इसको ऐड करो, 11,100. So right above, when you add it, the capital fund value, okay, increases 1,55,600, and then total कर लो. Again, not necessary. Question या एग्जाम स्टार्ट करने के पहले दुआ ज़रूर करनी चाहिए. यू शुड प्रे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन इफ़ यू हैव ऑल्सो पुट इन द हार्ड वर्क, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि मेरा क्वेश्चन सोल्यूशन सही है. सो 1,60,800, 1,60,800. okay, because I have just ended the question. It was a special one. But if you still have doubts, okay, if your friends have just joined the channel and they may not have watched the previous lectures, the chapters are always arranged in a playlist. So you will get a playlist for this specific chapter. Okay, so if you have missed out, or if your friends who join new, they can always watch right from the beginning. Otherwise they will have a lot of questions. Even though you have doubts, comment box में वो doubt आप definitely लिख कर देना, ताकि I'll do my best to make sure that those doubts are clarified. okay, so that is pretty much it आज के लिए. I hope जो मैंने आपको explain किया है वो आपको समझ में आ चुका है. okay, do not forget to what subscribe to the channel. That is very important for us, because it encourages us to come up with similar content which is useful to many students of the CBSE board. And वो जो so to say घंटा है, इसको ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. अगर हम कभी टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफाई नहीं कर पाए, यूट्यूब हमारे लिए वो काम ज़रूर कर देगा. ओके, सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स. बाकी डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना. आई विल मीट यू very soon with continuation of this particular chapter. Till that time, great day, good day, God bless.